communities in every corner of the country. The idea is to create leaders and not followers. Access must be created where it is possible, and there are small things each of us can do. At Law Seco, at Project Maverick, the aim is providing free training for law aspirant for all law entrance examination. Today, in one such session, a live interactive session, we have with us Neelam Ma'am, who is an expert in analytical reasoning. She has graciously agreed to take this particular session for the law aspirant. In this particular session, she will be dealing with a very, very important topic, blood relation. We also know this concept by family relation. Some people call it a family tree arrangement. This particular topic is relevant to all entrance examination, whether they are government exams or whether it's law entrance examination. This topic is tested a lot, and this is a very interesting topic wherein when you understand uh, what is the relationship between two individuals, and at this particular point of time when matchmaking web series have come also, so you can understand that in that perspective too. So over to you, ma'am. Thank you, Harsh. And hi, everyone. I am Neelam Gehlot, and we'll be discussing, the very interesting chapter of reasoning, and that is the blood relations. Guys, I can't hear you all because you all are muted, I guess. तो बात तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोग चैट में जरूर बोल सकते हैं, बता सकते हैं, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी आप बता सकते हैं, और कहीं पे कोई क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी तो आप रिप्लाई कर सकते हैं, राइट? अच्छा, तो थोड़ा सा डिस्कशन हम करेंगे. फर्स्ट, इससे पहले भी आपके कुछ रीजनिंग के सेशंस में आई एम श्योर, एंड आई वुड लाइक टू आस्क दैट आई एम ऑडिबल टू एवरीवन. दैट इज, वैसे तो मैंने ऑलरेडी चेक किया. आशीष, थैंक यू आशीष. अच्छा, बाकी सभी लोग प्लीज पे अटेंशन कि थोड़ा सा हम सेशन को इंटरेक्टिव रखेंगे, क्योंकि इट विल बी लिटिल प्रॉब्लमेटिक फॉर माई एंड एट माई एंड ऑल्सो कि आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड समथिंग बट आगे से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होने वाला है, राइट? अच्छा, ये सब आई गेस पहले जो भी सेशंस हुए होंगे आपको पता चला होगा कि व्हाट ऑल सिलेबस यू हैव, राइट? So do you have any difficulty in knowing the syllabus for CLAD? अगर ऐसा है तो let's discuss a bit of our syllabus and then we go forward. Tell me. Ma'am, the syllabus is already available on their course page. I'm sharing the course page link. I've already shared on the chat box. Right. Guys, so Mr. Harsh has already shared the link for the syllabus and everything. तो अगर किसी को, वैसे तो मुझे लगता नहीं आप लोगों को प्रॉब्लम होगा because you people are preparing now for a long time now. तो ये this is the basic of everything. ये आपको पता होगा already. नहीं भी पता होगा तो हर्ष सर ने अभी आपको शेयर कर दिया है. तो I guess this will be better for you guys. Okay, so let's move on to our session for today, that is blood relationships. The topic is blood relations, and this is one of the very, very interesting blood relations, right? इसको हिंदी में अगर कन्वर्ट करना चाहोगे तो इट विल साउंड वेरी ऑड. तो ब्लड इज लाइक खून का रिश्ता, समथिंग लाइक दैट. तो यही सब हमें डिस्कस करना है. अच्छा, ना व्हाट डू दे आस्क इन द एग्जामिनेशन? कभी आपने ऐसी सिचुएशन 100% फील की होगी, या कभी यू मस्ट हैव गॉन थ्रू सच सिचुएशन कि आप घर में हो, कोई गेस्ट आया है एंड यू काइंड ऑफ आर नॉट अवेलेबल. Akshat पूछ रहे, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर DU LLB, syllabus is the same. Akshat, I'm sure Mr. Harsh sir will help you out for the same. Don't worry. Now let's focus on the particular this topic, because this topic will be there in all the examination where you have reasoning as a portion, right? जिस भी एग्जाम में रीजनिंग आता है उन सारे एग्जाम में आपको ये ब्लड रिलेशन डेफिनेटली दिखाई देगा. तो वी कैन फॉर नाउ वी कैन फोकस ऑन दिस थिंग. तो ओके, नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज ब्लड रिलेशंस. हाँ, तो हम बात कर रहे थे सिचुएशन की. थोड़ा सा मैं बेस बताना चाहूंगी आप लोगों को, ताकि आप फेमिलियर हो पाए इस टॉपिक के साथ और ऐसा नहीं लगे कि कुछ हम रीजनिंग जैसा पढ़ रहे हैं
वो पढ़ने वाली फीलिंग नहीं आए, समझने वाली फीलिंग आए, तो उसके लिए लेट्स डिस्कस दिस थिंग. सो लेट सपोज आप घर में हैं, कोई गेस्ट आया लेकिन आप ठीक से पहचान नहीं पा रहे, जज नहीं कर पा रहे, एंड यू आस्क योर मदर दैट हु इज दिस गाय एंड मेरा रिलेशनशिप क्या है इनके साथ. तो मम्मी समझाना शुरू कर दें कि ये तुम्हारे मामा के बेटी के भाई के समथिंग समथिंग है. तो आप थोड़ा पजल हुए होंगे, ऐसा सबकी लाइफ में होता है कभी कभी, है ना. तो वही सब आपको ब्लड रिलेशन में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, द सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप. So when you make a relationship go like the mother's, father's, sister, daughter, something like this, you kind of form a chain, right? You kind of form a chain. Now, targeting our exam, we have two categories of questions. The first category is the short paragraph type, and the second category is the single statement and chain questions, right? ये दोनों कैटेगरीज क्या हैं, आई विल शो यू विद वन एग्जाम्पल ऑल्सो, सो दैट आपको क्लैरिटी रहे कि हम करने क्या वाले हैं. ठीक है, तो आते हैं जरा इस पे. पहले मैं आपको शो करती हूँ क्वेश्चन. ये जो शॉर्ट पैराग्राफ टाइप है ये क्या होता है, ये कैसा होता है. ठीक है, देखो जरा, ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर? इज इट विजिबल? राइट. So it says S is the mother of D, K is the brother of D, K is the only son of M, M is the son of U, U is the husband of T, T is the mother of Y. So what is it? ये क्या है? This is simply कुछ एक फैमिली के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है, रिलेशनशिप बताई गई है एक दूसरे की आपस में, और उसको आपको सॉल्व करना है, एक स्ट्रक्चर में लेकर आना है. देन you have to answer the following question. जैसे इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है कि if D is married to X, then how is X related to F? So such question, very simple, very easy topic. कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं. तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है, दिस इज द शॉर्ट पैराग्राफ टाइप. एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, डायरेक्शन, ये जो दिस क्वेश्चन यू ऑन योर स्क्रीन, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फॉर ब्लड रिलेशन. वो उसी तरीके का क्वेश्चन है, शॉर्ट पैराग्राफ टाइप. तो ये भी आपका एक वन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है. अच्छा, दूसरी हमने कैटेगरी डिस्कस की थी, कौन सी? The other one was the chain questions or the single statement. Now let's have a look on at these questions कि ये कैसे होते हैं, क्या difference होगा इनमें. Let me show you a question, guys. अच्छा, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए थे आपके क्लैट के प्रीवियस ईयर से, ताकि आपको पता चले कि जो हम पढ़ने वाले हैं आज, जो हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं आज, क्या उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आर वी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर. तो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा. ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्लैट के 2009 में आया है ये क्वेश्चन. So it suggests that pointing to a photograph, a lady tells Ram, I am the only daughter of this lady and her son is your maternal uncle. How is the speaker related to Ram's father? ये क्या है? ये आपका सिंगल स्टेटमेंट, और यू कैन कैटेगराइज इट इन द चेन क्वेश्चन. अभी हम बात करेंगे कि सिंगल स्टेटमेंट और चेन क्वेश्चन को एक्चुअली ये नाम क्यों दिया गया. सिंगल स्टेटमेंट तो सिंपल सी बात है, क्यों? आप देख रहे हो बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं, पैराग्राफ में क्या है, देयर आर 3 or 4 लाइंस. See, there are just 1 or 2 lines in the maximum, right? कभी-कभी ये chain question, which variety of questions are chain question? So which variety of questions are chain question? यही question को आप chain question भी बोलते हो. Why? We will come to know later on. Okay, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिला कि क्वेश्चन क्या होता है, कैसा होता है. ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं. क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड द लिटिल. So this is the very first thing. कुछ साइन लैंग्वेज हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो लैंग्वेज वाइज थोड़े से लेंदी हो सकते हैं. इट्स बेटर दैट वी व्हाइल वी सॉल्व, वी डोंट हैव टू राइट फॉर एवरी पर्सन कि ये मेल है, ये फीमेल है. हम कुछ साइन यूज करेंगे. ऐसा कुछ नहीं है कि ये इंटरनेशनल साइन है, आप अपने खुद के साइन बना सकते हो. दैट इज व्हाटसोएवर इज ओके टू यू, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद, आप उसको अपने लैंग्वेज में आप यूज कर सकते हो, अपनी साइन लैंग्वेज में. बट फॉर द क्लासरूम वी विल ट्राई टू हैव यूनिफॉर्म साइन, एक ही साइन रखने की कोशिश करेंगे, ताकि जो मैं ट्राई कर रही हूँ बताने का आप वही समझें, या जो हम बात कर रहे हैं वो हम सब एक ही यूनिफॉर्मिटी में बात कर रहे हैं. सो
we can be using plus sign to denote a male person. Let's suppose अगर मैंने बोला कि A is a father, A के लिए हमने क्या टर्म यूज किया, फादर, तो A के साथ जो साइन आएगा क्या आएगा, प्लस का आएगा. Why? Because we are calling A as father, so father will be a male person, so this sign will reflect that A is a male person, right? Similarly, minus sign we can use for a female. Siblings, अच्छा siblings क्या हम सब समझते हैं? Do we understand what are siblings? ब्रदर एंड सिस्टर. ओके. अच्छा, क्या हम अपने मामा के बेटे को अपना भाई या सिबलिंग बोल सकते हैं? विल दैट बी ओके? राइट, नो, एग्जैक्टली. तो सिबलिंग का मतलब है, हम हिंदी में बोलते हैं ना, आपने बहुत बार खुद भी यूज किया होगा ये वर्ड, मेरा सगा भाई है, मेरी सगी बहन है. तो सिंपल सी बात है, द किड्स who have the same parent, वो बच्चे जो सेम पेरेंट के चिल्ड्रन हैं वही आपस में भाई बहन होंगे, सिबलिंग्स होंगे. एंड सिबलिंग इज अ वर्ड यूज फॉर ब्रदर ऑल्सो एंड सिस्टर ऑल्सो. आप अपनी सिस्टर के लिए भी सिबलिंग यूज कर सकते हैं, आप अपने ब्रदर के लिए भी सिबलिंग यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अपने मामा और ये जो है चाचा चाची के बच्चों, इनके लिए आप सिबलिंग नहीं यूज करेंगे. दे विल बी योर कजिन्स, राइट? एंड देन द लास्ट साइन, दिस साइन इज डबल headed arrow, something like this, right? So this is to denote a married couple, not a normal couple like girlfriend boyfriend. This is to denote a married couple. क्योंकि हम ब्लड रिलेशंस की बात कर रहे हैं. ब्लड रिलेशन मतलब द रिलेशंस यू हैव थ्रू ब्लड, ठीक है? तो दिस इज अबाउट आवर साइन लैंग्वेज. अगर आपको कहीं पे नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे हम इन्हीं साइन लैंग्वेज को यूज करेंगे, राइट? कैन वी मूव फर्दर गाइस? दिस इज क्लियर? इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात है नहीं. प्लस फॉर मेल, माइनस फॉर फीमेल, this equals to sign for siblings and this double arrow sign for a married couple. Great. चलिए आगे बढ़ते हैं. समझ लेंगे कि how we all are connected and a little bit of the relationship that we find, you know, in our daily life, जो हमारे लिए जानना जरूरी है, so that we can solve all the variety of questions, ताकि हम कहीं अटके नहीं. वो समझने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे. अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर समझने के लिए लेट मी सो ये वाइट स्क्रीन दिख रही है आप सबको? अब थोड़ा सा समझते हैं कुछ ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर. लेट्स सपोज, आई एम श्योर देयर आर गर्ल्स आल्सो इन द ग्रुप राइट नाउ हैव जॉइंड. लेट्स सपोज मैंने आपको यहाँ ड्रॉ किया सेल्फ. सेल्फ का मतलब है आप खुद को यहाँ पर इमेजिन कीजिए. बॉय है तो मैंने प्लस साइन लगा दिया, अगर आप गर्ल हैं तो मैंने माइनस साइन लगा दिया. अब मेरा बहुत एक क्विक सा आपके साथ इंटरेक्शन होगा और मैं चाहती हूँ कि आप वैसे ही एज सुन एज आई आस्क द क्वेश्चन, एज द मोमेंट यू शुड बी रिप्लाइंग ऑल्सो. अपनी खुद की जनरेशन, और ये बहुत ईजी तरीका है, आपको बहुत अच्छे से ये चीज बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगी, ग्रैस्प हो जाएगी. तो जस्ट लेट्स बी टुगेदर फॉर दिस वन. सेल्फ मतलब आप खुद. आप गर्ल हैं तो आप गर्ल जैसे अपने आप को रखें, और बॉय हैं तो बॉय जैसे आप अपने आप को रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. अपनी खुद की जनरेशन पर, जिस जनरेशन में आप हैं, उस जनरेशन में आप और किस किस को देखते हैं? चलिए, इन योर सेम जनरेशन हु एल्स यू सी? cousins, very good. अच्छा, before cousins there can be something else also. वरेश बोल रहे हैं equals to sign, that is siblings, very good वरेश. एंड वरेश ने बहुत अच्छे से यूज किया है साइन लैंग्वेज को, दैट्स very intelligent of वरेश instead of writing siblings he has used the sign, so that's the presence of mind, I would say. appreciate that. आशीष बोल रहे हैं फ्रेंड्स नहीं आएंगे आशीष, डेफिनेटली फ्रेंड्स विल बी ऑन द सेम जनरेशन विद यू, लेकिन फ्रेंड्स से हमें कोई मतलब नहीं है इस पर्टिकुलर सेशन में. क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स आर नॉट कनेक्टेड थ्रू ब्लड, एंड द क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग इन द एग्जामिनेशन
उसमें हम ब्लड रिलेशन की बात करेंगे, लाइक मम्मी पापा भाई बहन मामा मामी चाचा चाची, ये सब आएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स को हम अवॉइड कर सकते हैं फॉर नाउ। और कुछ आ रहा है दिमाग में? चलो पहले तो मैं लिख देती हूँ वो सारी चीजें जो आप मुझे बता रहे हैं। आपने मुझे बताया एक तो सिबलिंग्स, अगर आप हो तो आपका भाई भी हो सकता है, राइट, आपका ब्रदर हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती है, करेक्ट। एंड लेट्स कीप एन आई ऑन द साइन ऑल्सो। ब्रदर के लिए मैंने मेल यूज किया है, माइनस में यूज करी सिस्टर को शो करने के लिए, यानी कि फीमेल। देन आपने मुझे बताया कजिन्स भी आपकी जनरेशन में होंगे, तो कजिन्स को कहीं दूर पर हम बना देते हैं कि कजिन्स भी हमारी जनरेशन में होंगे, नो डाउट विद दैट, ये डेफिनेटली कजिन्स भी हमारी जनरेशन में होंगे। एक चीज हम भूल रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारी लाइफ का हम भूल रहे हैं जो हमारी जनरेशन में आना चाहिए। कैन एनीवन कैन टेल मी दैट? चलो सबको सिर्फ 10-15 सेकंड का टाइम मिलेगा क्योंकि हमें थोड़ा सा आगे भी बढ़ना होगा। अच्छा, अज्यूमिंग कि आप लोग मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे कोई साइन नहीं आएगा। अच्छा ये बताओ, शादी वादी करने का कोई विचार नहीं है क्या तुम लोगों का? हाँ, कभी तो सपने सपने देखे होंगे कि हाँ भाई गर्लफ्रेंड है या किसी का बॉयफ्रेंड होगा, बातें बातें होती होंगी कि हाँ भाई तब तक शादी कर लेंगे, पहले कुछ बन जाएंगे फिर शादी कर लेंगे। अब जिससे शादी करोगे, जिसके साथ मैरिज करोगे, वो इंसान किस जनरेशन से, वो तुमसे नीचे जनरेशन से या तुमसे ऊपर जनरेशन से थोड़ा ना होगा। The guy you will be marrying to or the girl you will be marrying to will be of the same generation, right? So your partner, your marriage partner, या your life partner, if suppose you are a boy, you marry a girl, that girl, हम एक वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, पता है, एक वर्ड यूज करते हैं हम, और आप, आई एम वेरी श्योर कि आपको पता होगा ये वर्ड, स्पाउस। यानी कि जो आपका लाइफ पार्टनर है वो भी कहाँ होगा, इसी जनरेशन में होगा। दैट मीन योर स्पाउस विल बी एट द सेम जनरेशन। सो इफ यू आर अ बॉय, the girl you will be married to will be your spouse, and if you are a girl, the boy you will be marrying to will be your spouse. Getting the point? So in your own generation, at your own generation, you see yourself, you see your married partner, spouse, you see your cousins, and then you see your brother and sister, yani ki your siblings, right? Let's move a generation ahead. Let's go a generation ahead. अब अपने से ऊपर हम जाएंगे, हम अपने से पहले वाली जनरेशन में किसको देखते हैं? एनी आइडिया? बहुत सिंपल है, बताओ जल्दी से। आप अपने से ऊपर जाओगे तो किसको देखोगे? फादर को देखोगे। वेरी गुड आशीष, बिल्कुल करेक्ट बोल रहा आप। तो हम जब अपने से ऊपर आएंगे, फादर, मदर, पेरेंट्स, नवदीशा बोल रहे हैं, नवदीशा, ओके ग्रेट, बिल्कुल ठीक बोला आपने। अब देखो, यू are in the universe because of uncle and aunt. Great, very good, you guys are doing a fantastic job, correct। चलो अब थोड़ा सा हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं। भाई आप इस मेटरनल अंकल एंड आंट, वेरी गुड आशीष, दैट्स वेरी नाइस, आई वुड से आप एक कदम और आगे जाके आगे की बात कर रहे हो, दैट्स ग्रेट। नाउ we are in this universe because of our parents, so there is this father, and father got married to mother, right? So this married couple was the cause of our being, हमारे होने का कारण जो है वो हमारे मम्मी पापा, राइट? अच्छा, तो अपनी से एक जनरेशन ऊपर हम देखते हैं मम्मी पापा को, यानी कि पेरेंट्स को। अब जो आपका मैरिड पार्टनर है, जो आपका स्पाउस है, लेट्स सपोज अगर आप हस्बैंड है तो आपकी जो वाइफ है, वाइफ के पेरेंट्स यानी कि आपके पेरेंट्स इन लॉ। अगर आप खुद वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड, उनके पेरेंट्स आपके लिए पेरेंट्स इन लॉ हो जाएंगे। तो आप अपने पेरेंट्स को तो देखते ही हैं, साथ ही साथ किनको देखते हैं? अपने पेरेंट्स इन लॉ। तो साथ में मैं छोटा सा लिख देती हूँ, पेरेंट्स इन लॉ को भी देखते हैं, पेरेंट्स को देखते हैं और पेरेंट्स इन लॉ को देखते हैं। अच्छा, अब एक और चीज, ये जो आप लोगों ने लिखा है मैटरनल अंकल और आंट और समथिंग, इसको हम थोड़ा एक बेहतर तरीके से समझते हैं। पापा हैं, पापा के भाई बहन भी तो इसी जनरेशन में होंगे पापा की, राइट? तो अगर फादर हैं, फादर के ब्रदर और फादर की सिस्टर, पापा के भाई आपके क्या हो सकते हैं? अंकल, और टू बी मोर प्रिसाइज वी कैन कॉल हिम एज पेटर्नल अंकल। Paternal shows our father's side and maternal shows our mother's side.
किसी को कहीं पर भी कोई इश्यू हो, कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो, तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा पूरा फोकस है इस चैट बॉक्स पर, सो दैट वी ऑल अंडरस्टैंड एन इंच ऑफ एवरी इंच ऑफ दिस क्लास, राइट। तो पापा के भाई होंगे तो वो हिंदी में अगर हम बोले तो ताऊजी हो सकते हैं अगर वो पापा से बड़े हैं, चाचा हो सकते हैं अगर वो पापा से छोटे हैं, बट दैट डजंट मैटर। व्हाई? बिकॉज चाहे तो ताऊजी हो चाहे चाचा जी हो, फॉर बोथ वी आर गोइंग टू यूज द सेम टर्म, दैट इज द uncle, and to be more precise, paternal uncle. Then if your father has a sister, that sister will be your aunt, बुआ जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, right? Again it can be called precisely, it can be called as what, paternal aunt. तो ये तो हो गई हमारी पापा की साइड। मम्मी की साइड पे अगर मम्मी का कोई भाई है, मम्मी का कोई ब्रदर है, राइट, तो वो क्या हो गए, मामा। हिंदी में मामा बोलते हैं। मामा को हम बोलेंगे अंकल। अगेन अगेन मामा को भी आप अंकल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं अगर आपको पूछ लिया जाता है, आपके ऑप्शंस आ जाते हैं, आपका आंसर निकल कर आया कि मामा, ठीक है, और आपके पास ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन है अंकल और दूसरा ऑप्शन है मेटरनल अंकल, और आपका आंसर जो आप मार्क करना चाहते हैं मामा के लिए मार्क करना चाहते हैं, in that case you cannot mark uncle, you have to mark maternal uncle. Why? Because the examiner has put quite specific of the options, right? उसने अंकल के साथ साथ मेटरनल भी दिया है, यानी कि टू चेक योर नॉर्मल बेसिक सेंस दैट वी अंडरस्टैंड मेटरनल और पैटर्नल और नॉट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मम्मी का भाई है तो मामा हो गए, मामा हो गए यानी कि अंकल हो गए, अंकल हो गए मतलब मेटरनल अंकल हो गए, इफ वी आर मोर गोइंग टू बी मोर प्रिसाइज। मम्मी की अगर कोई सिस्टर है तो क्या होगी, आंट हो गई। आंट मतलब हमारा मतलब है यहाँ पे मासी से, आंट हो गई, या हम बोल सकते हैं मेटरनल आंट हो गई। अगेन जो भी आप लोगों ने मुझे बताया बिल्कुल सही बताया। तो मेटरनल आंट आ जाएंगी, पेटरनल आंट आ जाएगी, मेटरनल अंकल आ जाएंगे, पेटरनल अंकल आ जाएंगे। ऑफ कोर्स योर मदर एंड फादर विल बी अ जनरेशन अहेड, and also your parents in law will be a generation ahead, right? Now let's moving to the next generation। इससे एक जनरेशन अगर हम और ऊपर जाएं तो अब हम किनको देखते हैं। If you go one generation more, grandmom and dad, that's great आशीष। grandfather grandmother ऋषिकेश बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप लोग। ऑब्वियसली इससे एक जनरेशन और ऊपर जाएंगे तो कौन दिखाई देंगे, पापा के पापा, मम्मी की मम्मी, पापा के मम्मी पापा। तो पापा के मम्मी पापा क्या हो जाएंगे, ये पापा के पापा हैं, और सॉरी गाइस यूजिंग अ रॉन्ग साइन, और ये पापा की मम्मी। No, 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 no. If you go one more generation above, Rishikesh, if I'm taking your name right, I'll be, I guess I'm taking your name right. So great grandfather will be one generation above. Thank you, Rishikesh. तो ग्रेट ग्रैंडफादर इज परदादा पर नानी। अगर आपने हिंदी में कभी सुना हो ये वर्ड परदादा पर नानी, दैट इज योर ग्रेट ग्रैंडफादर। दादा दादी इज ग्रैंडफादर ओनली, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर। तो जब आप पापा मम्मी की जनरेशन से भी एक जनरेशन ऊपर जाओगे तो पापा के मम्मी पापा होंगे, तो ये हो गया आपके ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी, राइट। और पापा की मम्मी होगी कौन, ग्रैंड मदर, यानी कि कौन, दादी जी, राइट। अगर मम्मी के हम बात करते हैं मम्मी पापा की, तो मम्मी के मम्मी पापा कौन होंगे आपके, नाना नानी, नाना नानी यानी कि अगेन ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, राइट। हाँ हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, हम इसको प्रिसाइसली बोल सकते हैं एज इन वी कैन कॉल इट एज मेटरनल ग्रैंडफादर, मेटरनल ग्रैंडमदर, पेटर्नल ग्रैंडफादर, पेटर्नल ग्रैंडमदर। और वो चीज अभी हम आगे क्वेश्चंस के थ्रू और अच्छे से समझ लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा तो हमने शुरू किया यहाँ से, हम अपनी जनरेशन पे देखते हैं अपने भाई बहन को, अपने कजिन्स को और अपने मैरिड पार्टनर को। हम अपने से एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तो हमें दिखाई देंगे अपने मम्मी पापा, मम्मी पापा के भाई बहन, मम्मी के भाई बहन, मामा मासी, मेटरनल अंकल, मेटरनल आंट, पापा के भाई बहन, चाचा ताऊ एंड बुआ, पेटर्नल अंकल, पेटर्नल आंट। उससे एक जनरेशन और ऊपर जाएंगे तो दिखाई देंगे हमको ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, दादाजी दादी जी, नाना जी नानी जी। अगेन द वर्ड्स यूज विल बी द सेम, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर ओनली। इससे एक जनरेशन और ऊपर जाओगे तो हमें कौन दिखाई देंगे, ग्रेट ग्रैंड फादर
and great grandmother. Are we clear, guys? Right? Now let's move one generation down. ये तो हो गया हमें हमारे ऊपर जाने का, हम अपने से ऊपर 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 जाएं तो। अब हाय निकिता, एंड अब हम अगर अपने से एक जनरेशन नीचे जाएं तो कौन दिखता है हमें? इफ यू गो अ जनरेशन डाउन फ्रॉम योर्स, सन एंड डॉटर, एग्जैक्टली। अब भाई आप हो, आपका मैरिड पार्टनर है, गॉट मैरिड, हैड किड्स, नीज होगी, वेरी गुड, एग्जैक्टली। तो पहली बात, अपने से एक जनरेशन नीचे जाने का मतलब कब होगी ये जनरेशन, कैसे बढ़ेंगी? व्हेन यू गेट मैरिड, यू हैव किड्स, ओनली देन देयर इज एन एक्सपेंशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, अब आपके खुद के चिल्ड्रन यानी कि सन, डॉटर, तो ये तो हो गया आपके खुद के चिल्ड्रन, सन एंड डॉटर। अब ये जो कजिन्स थे, इनकी भी शादी हुई होगी, इनकी भी मैरिज हुई होगी, इनके भी चिल्ड्रन होंगे, इजंट इट? अब इनके जो चिल्ड्रन है वो आपके क्या हुए? या फॉर एग्जाम्पल आपका भाई था, भाई उसकी भी मैरिज हुई, अब उसके भी चिल्ड्रन है। आपके ब्रदर की मैरिज हुई, उसके भी चिल्ड्रन है। अब आपके भाई के तो चिल्ड्रन है, लेकिन आपके लिए क्या हो गए? आपके भाई के बच्चे अगर हैं, आपके भाई के अगर चिल्ड्रन हैं, तो आपके लिए वो क्या हो गए? नीस और नेफ्यू। क्या हो गए? नीस और नेफ्यू। वी यूज द टर्म नीस जस्ट सो दैट किसी को प्रॉब्लम ना हो, तो आई एम इलैबोरेटिंग दिस थिंग। वी यूज द टर्म नीस फॉर अ फीमेल चाइल्ड, ठीक है, एंड वी यूज द टर्म नेफ्यू फॉर अ मेल चाइल्ड। इसका हिंदी में एग्जैक्ट अगर मैं मीनिंग बताने की कोशिश करूं, तो जैसे अगर आपके भाई के बच्चे होंगे तो उसको आप बोलोगे, अगर आपके भाई का बेटा है तो आप बोलोगे भतीजा, और अगर आपके भाई की बेटी है तो आप बोलोगे भतीजी। भतीजा इज नेफ्यू एंड भतीजी इज नीस, राइट? आई होप, क्योंकि आपने अपने हम घर में सुनते हैं सारे वर्ड्स, इसलिए आपको ज्यादा इजी होगा कनेक्ट करना, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग दिस थिंग। नाउ इफ सपोज योर सिस्टर गेट्स मैरिड, शी हैज किड्स, तो उसके जो चिल्ड्रन होंगे वो भी आपके लिए क्या होंगे? नीस एंड नेफ्यू ही होंगे। उसके बच्चे भी आपके लिए क्या होंगे? नीस और नेफ्यू ही होंगे, राइट? अब ये बच्चे तो आपके लिए हो गए क्या? नीस और नेफ्यू। आप क्या होंगे इन बच्चों के? हाउ विल यू बी रिलेटेड टू दीज चिल्ड्रन? और आई कैन सिंपली आस्क यू अ क्वेश्चन, if someone is niece or nephew to you, yes definitely, आशीष बिल्कुल हम बोल सकते हैं मेटरनल साइड पे या पैटर्नल साइड पे, बट बहुत सारी चीजें ना अभी हमारे जब हम क्वेश्चन करेंगे उसके ऑप्शन से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम बोल सकते हैं, अगर मुझे अपनी बहन के बच्चों की बात करनी है तो यस, टू सेग्रीगेट, टू डिफरेंशिएट कि मैं किसकी बात कर रही हूँ एग्जैक्टली, तो आई कैन यूज द वर्ड मेटरनल साइड, नो इश्यूज। या वो बच्चा मेरे लिए बोल सकता है कि मेरी मेटरनल आंट है या मेरा मेटरनल अंकल है, राइट? यस, वी कैन यूज दैट। तो आंसर टू योर क्वेश्चन, यस इट इज। और वरेश बोल रहे पैटर्नल। वरेश, यू वर राइटिंग समथिंग, आई गेस तुम बीच में तुमने छोड़ दिया, पैटर्नल सिर्फ लिखा है, खैर कोई बात नहीं, चलिए। सो वी वर डिस्कसिंग, अगर कोई बच्चा आपके लिए नीस या नेफ्यू है तो आप उन बच्चों के क्या होंगे? अंकल और आंटी तो होंगे, इजंट इट? ओके, सो अ जनरेशन बिलो अस, हमसे अपनी जनरेशन से एक जनरेशन नीचे देखेंगे तो हम देखेंगे सन एंड डॉटर को, अपने बच्चों को देखेंगे, हम चिल्ड्रन को देखेंगे, हमारे भाई बहन के बच्चे हो सकते हैं उनको देखेंगे, यानी कि नीस और नेफ्यू को देखेंगे, हमारी बहन के सिस्टर के बच्चे हो सकते हैं, अगेन नीस और नेफ्यू, इनको देख सकते हो। कजिन्स के बच्चे होंगे तो वो भी आपके लिए नीस और नेफ्यू ही होंगे, ठीक है? देयर इज नो अदर वर्ड फॉर दैट, नीस और नेफ्यू ही होगा वो भी, राइट? नाउ गेटिंग वन जनरेशन डाउन, एक और जनरेशन नीचे जाते हैं, तो अब कौन दिखाई देगा? बच्चों के बच्चे। आपका बेटा है, बेटे के बच्चे दिखाई देंगे, तो क्या हो गया आपके? ग्रैंड चिल्ड्रन। ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर, ठीक है? कजिन्स के भी बच्चे होंगे तो वो भी ग्रैंड चिल्ड्रन में आएंगे, और जो आपके
आपके नीस नेफ्यू के बच्चे होंगे वो भी आपके कहीं ना कहीं ग्रैंड चिल्ड्रन में ही आएंगे, और उससे एक जनरेशन और नीचे जाए, if we go one more generation down from there, then we'll have the great grandchildren, great grandchildren, right? Do we understand till now? Okay, great. चलिए, thank you guys, you people are so active, this is just very good, keep that pace. चलिए अब थोड़ा सा हम फर्स्ट टाइम आई गॉट दिस, आशीष है ना आशीष, तो आपको और बेहतर तरीके से सेंस ऑफ दिस थिंग, राइट? चलिए अब ओके, नाउ डू यू सी दिस डायग्राम? या सच अ लॉन्ग ट्री, सच अ लॉन्ग ट्री, बट दिस इज वेरी बेसिक, दिस आपको बहुत चुटकियों में समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, डू नॉट, ओके? ये सब चुटकियों का खेल है, सिंपल, इजीली। अच्छा देखो जरा इसको, अब क्या ये वही सब कुछ नहीं है जो हमने भी डिस्कस किया? यू डू यू फाइंड समथिंग न्यू हियर? नो, ये सब वही है जो हमने भी डिस्कस किया था, राइट? अब इसको एक बार फटाफट से हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये हो आप सेल्फ, आप खुद सेल्फ में आप बॉय हैं तो बॉय जैसे कंसिडर कर लीजिए अपने आप को। अगर यहाँ पे कुछ बिकॉज गर्ल्स भी है सेशन में, तो आप गर्ल जैसे अपने आप को समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी खुद की जनरेशन पे आप किसको देखोगे? अपनी खुद की जनरेशन पे आप देखोगे अपने भाई को, अपनी बहन को, ठीक है, यानी कि सिबलिंग को, टू कट शॉर्ट। देन अपनी खुद की जनरेशन पे आप किसको देखोगे? अपने स्पाउस को। व्हाट डू वी मीन बाय स्पाउस? अगर आप किसी के हस्बैंड हैं तो जो आपकी वाइफ है वो आपकी स्पाउस है। अगर आप किसी के वाइफ हैं तो वो जो आपके हस्बैंड है वो आपके स्पाउस है। अच्छा, साथ ही साथ जो आपके स्पाउस है, लेट्स सपोज आप हस्बैंड है किसी के, तो जो आपकी वाइफ है, वाइफ का भी तो भाई बहन होगा ना, हम इसको तो भूल ही गए। जो आपकी वाइफ होगी, वाइफ का भाई होगा, तो आपका क्या होगा? ब्रदर इन लॉ। वाइफ की सिस्टर होगी तो आपकी क्या होगी? सिस्टर इन लॉ। तो जो यानी कि टू कंक्लूड नाउ वी कैन से दैट ऑन आवर ओन जनरेशन वी विल फाइंड आवर सिबलिंग्स, that is brother and sister. We will see our spouse. We will also see our sisters-in-law and brothers-in-law. You get that? Sisters-in-law and brother-in-law. Who is the brother-in-law here? अगर आप husband है किसी के, तो जो आपकी wife है, wife का जो भाई होगा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? साला बोलते हैं ना, है ना? तो साला जो होगा या साली जो होगी, सॉरी गाइस, थोड़ा सा आई जस्ट, मैं आई एम नॉट अब्यूजिंग और समथिंग, बट हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें सो दैट वी हैव क्लैरिटी इन माइंड्स आल्सो। तो ब्रदर इन लॉ यहाँ पे हम बोलना चाह रहे हैं किसको? वाइफ के ब्रदर को या हस्बैंड के ब्रदर को? हस्बैंड का ब्रदर कौन हो गया? देवर या जेठ, राइट? वी विल कम टू दैट इन लेटर ऑन आल्सो। तो ये तो होगी अपनी खुद की जनरेशन, ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ आल्सो, ठीक है ना? मूविंग फर्दर, अपने से एक जनरेशन ऊपर देखेंगे हम, मम्मी को, फादर को, मदर को। अब पापा के भाई बहन भी होंगे इस जनरेशन में। पापा का भाई यानी कि अंकल, टू बी मोर प्रिसाइज पैटर्नल अंकल। पापा की सिस्टर आंट यानी कि बुआ, टू बी मोर प्रिसाइज पैटर्नल आंट। मम्मी का भाई मामा जी, अंकल, मैटरनल अंकल। मम्मी की बहन मासी, aunt, maternal aunt. And if you want to go one generation further, आप एक जनरेशन और पर जाओगे तो आपको दिखाई देंगे दादा दादी, पापा के मम्मी पापा दादा दादी, मम्मी के मम्मी पापा नाना नानी। लेकिन सबके लिए टर्म एक ही यूज होता है, दैट इज ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। अब आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो यहाँ पे कि तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि भाई नाना की बात हो रही है, नानी की बात हो रही है? कई क्वेश्चन में ऑप्शन से पता चल जाता है कि नाना की बात हो रही, कि दादा की बात हो रही है। कई क्वेश्चन में लैंग्वेज कुछ इस तरह से यूज होती है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग गाइस, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस होंगे वहां पे आपको इस चीज की क्लैरिटी होना जरूरी है। जब आप दादा की बात करते हैं, दादाजी की बात होती है ना, तब आप सिंपल देखेंगे मैक्सिमम टाइम यू विल फाइंड द वर्ड रिटन ग्रैंड फादर ओनली, राइट? इफ यू हैव टू डिस्क्राइब नाना जी, या क्वेश्चन में कुछ इस तरह से लिंकअप है कि नाना की बात करनी है, नाना जी की बात करनी है, इन दैट केस दो टर्म यूज होती है,
एक तो सिंपल सी बात है भाई, अगर हम बोले मदर्स फादर, एक तो क्या बोले हम, मदर्स फादर, मम्मी के पापा, मम्मी के पिताजी। मम्मी के पापा तो सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग हो रही है दिमाग में कि मम्मी के पापा कौन हुए, नाना जी, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक और टर्म यूज होता है, दैट इज मेटरनल ग्रैंडफादर। क्या होगा, मेटरनल ग्रैंडफादर, यानी कि दादा, यानी कि वो जो एज है, वो जनरेशन तो वही है ग्रैंडफादर वाली, लेकिन किस साइड से, मेटरनल साइड से, यानी कि मम्मी की साइड से। तो इसका मतलब भी क्या होगा, मेटरनल का मतलब भी क्या होगा, नाना जी, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। चलिए अब हम आते हैं अपने से इससे और ऊपर जाएंगे, तो ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडमदर, ठीक है, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। किसी ने कुछ, आशीष बोल रहा है कि साइन बिटवीन मॉम एंड अंकल इज रॉन्ग इफ आई एम, लेट मी चेक, मॉम एंड अंकल इज रॉन्ग, नो नो नो, इट्स नॉट रॉन्ग आशीष, इट्स नॉट रॉन्ग एट ऑल। अगर आप, और मेरे ख्याल से किसी और का भी इशू हो सकता है, तो इस चीज पे एक बार ध्यान दे लेते हैं सब लोग। ये जितने भी टर्म्स लिखे हैं ना यहाँ पर, ऑल दीज टर्म्स यू सी आर इन रिस्पेक्ट टू योर सेल्फ। मैंने ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है ना, ये आपकी रिस्पेक्ट में है। ये पापा हैं तो किसके, आपके सेल्फ। मम्मी है तो किसकी, आपकी। मम्मी का कोई भाई है तो आपके वो क्या हुए, मैंने ये लिखा हुआ है। मम्मी के लिए ये पर्सन क्या है, ब्रदर है। मम्मी के लिए तो ये पर्सन ब्रदर है, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट में ये पर्सन क्या है, अंकल है। ये जो सारी साइन लैंग्वेज यूज हो रही है, जो सारे वर्ड्स यहाँ पे आप देखते हो, वो सारे वर्ड इट इज इन रेफरेंस टू यू, यू एज इन सेंटर। आपके ये कौन है, पापा है, आपकी ये कौन है, मम्मी है। आपकी मम्मी का कोई भाई है तो आपके लिए क्या हो गया, मामा हो गया, अंकल हो गया। आपकी मम्मी की कोई सिस्टर है तो आपके लिए क्या हो गई, आंट हो गई। तो ये जो वर्ड्स लिखे हैं ना, ये दीज वर्ड्स आर इन रिलेशन टू यू, आप हो सेंटर में। आशीष, इज इट क्लियर नाउ? या, ठीक है। एंड दैट्स ग्रेट कि अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो यू नीड टू आस्क, दैट्स वेरी ग्रेट। चलिए, अच्छा अब आते हैं हम, इसीलिए तो मैंने देखो स्पाउस को स्पाउस लिखा है। स्पाउस से मतलब है कि अगर आप बॉय हैं तो आपकी जो वाइफ है वो आपकी स्पाउस, अगर आप गर्ल हैं तो आपको जो हस्बैंड है वो आपका स्पाउस, ठीक है। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मैम यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सेल्फ के हिसाब से देखूं तो सेल्फ के हिसाब से ये जो रिलेशनशिप है ये ब्रदर इन लॉ होगा, और ये रिलेशनशिप सेल्फ के हिसाब से होगी सिस्टर इन लॉ। या, देयर आई हैव मेड अ मिस्टेक, ओके। अब आते हैं अपने से डाउन, अपने से नीचे हम किसको देखेंगे, अपने बेटे को, बेटी को, सन, डॉटर, और कौन, अगर हमारा ब्रदर है तो ब्रदर के बच्चे, यानी कि हमारे लिए क्या हो गए, नीस और नेफ्यू हो गए। हमारी कोई सिस्टर है तो उसके चिल्ड्रन हमारे लिए क्या हो गए, नीस और नेफ्यू हो गए, राइट। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप मुझे बताओगे, ठीक है। सो गाइस बी रेडी, ये हो आप, दिस इज यू, एंड नाउ आई वुड लाइक कि आप सब मेल जेंडर को कंसिडर करें, किसको, मेल जेंडर को, ठीक है। आप अपने भाई का बेटा, आपका ब्रदर है, ब्रदर गॉट मैरिड, ही हैज किड्स, हाउ विल यू बी रिलेटेड? स्मिता, आई विल बी टेकिंग योर क्वेरी, जस्ट अ सेकेंड, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, और उसके बाद आई विल टेक योर क्वेरी, डोंट वरी। सो यू आर एट दिस प्लेस, और आप सब एक कंसिडर करिए कि मेल पर्सन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आपका भाई है, भाई की मैरिज हुई और उसके चिल्ड्रन है। अब भाई का एक बेटा है, ठीक है। आप उसके क्या लगेंगे, हाउ यू विल बी रिलेटेड टू द चिल्ड्रन ऑफ योर ब्रदर? आशीष बोल रहे हैं पैटर्नल अंकल, ऋषिकेश बोल रहे हैं पैटर्नल अंकल, देन वरेश का भी आंसर आया पैटर्नल अंकल। स्मिता, आप बता सकते हो? दैट इज ग्रेट, ओके। स्मिता, सिंपल इस डायग्राम को भूल जाओ, अगर इससे कंफ्यूजन हो रहा है भूल जाओ इसको। अब लेट सपोज आपका भाई है, ठीक है, भाई की मैरिज हो गई, उसके बच्चे हैं, आप उन बच्चों की क्या लगोगी? हाउ विल यू रिलेट योर सेल्फ टू द किड्स ऑफ योर सिबलिंग्स? अपने भाई बहन के बच्चों
के आपको क्या लगता है कि आपका रिलेशनशिप क्या होगा उनके साथ? एग्जैक्टली वो बच्चा आपका क्या लगेगा, नेफ्यू लगेगा या नीस लगेगी, बिल्कुल ठीक। ये आपने रिलेशन मुझे उल्टा बता दिया। उल्टा मतलब कॉन्सेप्ट आप ठीक पकड़ रहे हो, बिल्कुल ठीक पकड़ रहे हो, नॉट एन इशू। लेकिन आई आस्क कि आप क्या लगेंगे उन बच्चों के। आपने मुझे जो आंसर किया है, और ये मिस्टेक काफी लोगों की होती है, प्लीज पे अटेंशन टू दिस थिंग। मैंने स्मिता से पूछा कि स्मिता आप अपने भाई बहन के बच्चों की क्या लगोगी, हाउ विल यू बी रिलेटेड टू द किड्स ऑफ योर सिबलिंग। शी आंसर्स नीस और नेफ्यू। ये उल्टा आंसर है। पैटर्नल आंट, ग्रेट, वेरी गुड, एग्जैक्टली। स्मिता आप समझ में आया आपको? अब स्मिता थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि आप फीमेल नहीं है, आप मेल पर्सन है, ठीक है? या आप अपने आप को नहीं अज्यूम करो, किसी और को अज्यूम कर लो कि आपका भाई है, और आपके भाई आपके दूसरे भाई के बच्चों को क्या लगेगा? अंकल लगेगा ना, चाचा या ताऊ लगेगा ना, राइट? अंकल, वेरी गुड, एग्जैक्टली। तो अब अगर आप किसी के अंकल एंड आंट है तो वो बच्चे आपके क्या हुए? नीस और नेफ्यू हुए। और जब आप अपने भाई के बच्चों की बात करोगे, तो अगर मुझे बोलना है व्हाट काइंड ऑफ आंट और अंकल, क्योंकि आप रिलेशन किस तरफ से है, ये बच्चों के लिए आप क्या हो? उसके पापा की बहन या भाई हो, तो पापा की बहन या भाई क्या हो जाएंगे? पैटर्नल अंकल और पैटर्नल आंट। सिमिलरली, एग्जैक्टली स्मिता, वेरी गुड। सिमिलरली अगर आपकी सिस्टर के बच्चे हैं, आप स्मिता, ऋषिकेश एंड वरेश एंड एवरीवन, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि अगर आपकी सिस्टर है, शी गेट्स मैरिड, शी हैड्स किड्स, ठीक है? आपकी बहन है, उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हैं, उन बच्चों के आप क्या लगेंगे? लेट्स कंसीडर फर्स्ट मेल। वरेश बोल रहे अंकल, मैटरनल अंकल। आशीष, आर यू श्योर पैटर्नल अंकल होगा? ऋषिकेश, वरेश, बजीला, I guess. I'm sorry if I'm taking it wrong. And maternal uncle. फिलहाल बजीला आपने आंसर ठीक किया है, मैटरनल अंकल, क्योंकि बहन के बच्चों के आप क्या लगेंगे? मामा। मामा गोज फॉर मैटरनल अंकल। आप सिंपली अंकल भी बोल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चाचा बोलो, अंकल बोलो, ताऊ बोलो, और ये मामा बोलो, सब में अंकल चलेगा। इट गोज वेरी वेल, नो इश्यूज। बट the issue is there when the examiner puts specific option. आशीष बोल। आशीष सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। आशीष, कंसीडर करो तुम्हारी सिस्टर है, ठीक है? उसकी मैरिज होती है, ठीक है? उसके 2 किड्स हैं, एक बॉय है और एक गर्ल है, ठीक है? अब आपकी बहन के बच्चे हैं, आपकी सिस्टर के बच्चे हैं, आप उनके क्या लगोगे? हिंदी में बताओ, सिंपल हिंदी में बताओ, इंग्लिश छोड़ो अभी, हिंदी में बताओ। बताओ आशीष। मामा लगोगे ना? मामा को अगर तुम्हें बोलना है इंग्लिश में तो अंकल बोलोगे ना? मामा, चाचा था उस सबके लिए, बुआ, फूफा, बुआ के लिए तो नहीं है ना, अंकल बोलेंगे। अब एग्जामिनर ने क्या बोला? एग्जामिनर ने बोला कि भाई आपने आंसर निकाला मामा। जैसे अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप सबने मुझे अपना आंसर दिया मामा, राइट? सबका आंसर ये आया। लेकिन आपके ऑप्शंस में एक ऑप्शन में अंकल भी है, दूसरे ऑप्शन में मैटरनल अंकल भी। आप बताओ, आपको क्या लगता है कि आपको कौन सा ऑप्शन मार्क करना चाहिए? बताओ आशीष, कौन सा ऑप्शन पिक करोगे आप मामा के लिए? मैटरनल। बस यही तो बात हो रही थी, यही बात हो रही थी आशीष, ठीक है? क्लियर है? एग्जैक्टली। अच्छा, अब एक बात बताओ, आप तो उन बच्चों के क्या हो गए? अंकल एंड आंट, और वो बच्चे आपके क्या हो गए? नीस और नेफ्यू। अच्छा, इस चीज को हम कॉन्क्लूड भी कर सकते हैं और आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। कैसे? whenever you or someone is related to you as niece or nephew, जब भी कोई इंसान आपसे कनेक्टेड है एज नीस और नेफ्यू, तो आप उसके क्या लगोगे? या तो अंकल या आंट, इजंट इट? बस हमें किसको देखना है? अब जेंडर को देखना है कि जेंडर क्या है। मेल है तो अंकल हो जाएगा, फीमेल है तो आंट हो जाएगी। या आप इसको वाइस वर्सा भी देख सकते हो। इफ आई विल राइट इट, if you are uncle or aunt to someone,
What is this? Guys, just a second. Is it visible now? Yes, ma'am. Something happened, I guess, in between. It's visible. Harsh, can you tell me the slide? What do you read in the first this slide? The first line. I'm seeing the structure of something. It's written basic guide to relationship. Yeah, it's written basic guide to relationship. And now there's nothing written, but there's a structure, right? Yeah. Okay, sure. Sorry, everyone. Kuch shayad some technical error was there. Okay. Now, so we were discussing something. I was asking some question. Now it's just gone. Okay. हाँ, so we were discussing if you are uncle or aunt to someone, right? अगर आप किसी के uncle या aunt लग रहे हैं, right? If A is uncle to B, तो B का relationship अगर पूछा जाए A के साथ, तो B will be either niece or nephew of A. You just need to focus on the gender that B carries, right? So B either is going to be a girl or a boy, right? Then in that case, the B can be either niece or nephew to A, right? तो इसको आप two ways relationship में अगर देखोगे तो आपके लिए बहुत easy रहेगा. What I'm trying to tell you guys, I'm trying to tell you that if you are son to someone, अगर आप किसी के बेटे हैं तो किसके बेटे हो सकते हो आप? अपनी मम्मी के या पापा के? If you are husband of someone, तो आप किसके husband होंगे? अपनी wife के. If you are wife to someone, तो सामने वाला इंसान आपका क्या होगा? Husband. तो जब आप if someone is your grandfather, तो grandfather किसके हो सकते हैं? Grandson या granddaughter के. तो जब आप relationship को two way में देखते हो ना, तब बहुत easy आपके दिमाग में ये structure आते हैं. बहुत easy आप connect कर पाते हो. I hope this is clear now. And then moving from one generation down, if you go one generation down, you find your grandchildren, and one more generation down, you see your great grandchildren. I hope this idea is clear, everyone. There is no chat box I can see right now. I'm unable to see chat box. Now we are getting the responses from everyone. Shushri Smita, ma'am, my question. Varesh Singh, yes, ma'am. Shushri Smita. So we are getting responses. But I just, I can't see the chat box, but something, has happened just now. चलो कोई बात नहीं. We'll see to that. तब तक एक क्वेश्चन करते हैं साथ में. अच्छा, उससे पहले क्वेश्चन करने से पहले गाइस, आई एम श्योर कि आप सब लोगों को आवाज भी आ रही है और आप देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो और समझ में भी आ रहा है. मैं अभी ट्राई करती हूँ कि चैट बॉक्स कैसे. उससे पहले देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल. मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ, आप मुझे अपने आंसर बताना, ठीक है? आई एम आस्किंग दैट Ananya and Raghav are siblings. Ananya and Raghav are siblings. ठीक है? एक सिंपल सा स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है that Ananya and Raghav are siblings. And the question I have for you, how is Ananya related to Raghav? How is Ananya related to Raghav? Can you guys tell me the answer? Ananya and Raghav are siblings. How is Ananya related to Raghav? अच्छा, आप लोग ना अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो क्योंकि चैट बॉक्स में देख नहीं पा रहे हैं. देन विदाउट इंटरेक्शन
ठीक नहीं है क्लास में, तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो इफ यू कैन, एंड यू कैन डायरेक्टली आंसर मी. Sister. Navdisha is there. Smita is there. Harsh, sorry, Rishikesh was there, I guess. Guys, please unmute yourself and answer this question. I'm just making that possible. Okay. They are already responding in chat boxes. Yes, ma'am. Oh, this is just, becoming. Sorry, guys, I'm just talking to Harsh right now. This has become a little impossible. Yeah, so I'm ensured that I do unmute the people, but what happened is most of the time they unmute, then they mute themselves. So I have to again unmute them. So that is the thing which is coming along. Achha, So give me a second, Harsh. Let me check here. Chat box मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? Can I just take a minute? Yeah, sure. I don't know something. Okay, I got it. It's gone again. Can you see the message? Now I can. Can we re-log in or something? We can continue. I will just try to unmute few people and Acha, guys, let's Varesh, Vazila, Smita, and everyone, please unmute yourself. Harsh sir will be unmuting you guys. Do not mute yourself again. You guys can directly talk to me. That will be better. And also the responses are visible on your screen. I can see it on your screen. Right now it is, but when I'm going ahead now, like this, I can't see anything. This chat box is not popping up now. Okay. This is the problem happening. Acha, I got it now. I got it. Thank God. Chaliye. Sorry, guys. Okay. Now it's great. So the question was कि अगर अच्छा आप लोगों ने आंसर किया है कुछ? हाँ, तो सिस्टर बोला आप लोगों ने, ठीक है, आई गॉट द पॉइंट. और क्या आंसर्स हैं? और भी आप लोगों ने आंसर किया होगा. लेट मी चेक योर आंसर्स. सिस्टर मैक्सिमम लोगों ने बोला है सिस्टर. ठीक है, अब चलो एक चीज करते हैं. आप मुझे बताना, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, बट एक सिंपल सा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. पहले हमारा क्वेश्चन था अनन्या एंड राघव आर सिबलिंग्स. ये था ना अपना क्वेश्चन पहले. एंड हाउ इज अनन्या रिलेटेड राघव. अभी भूल जाते हैं, अनन्या को हटा के मैंने कर दिया x और राघव को हटा के मैंने कर दिया y. Now the question becomes x and y are siblings. Now the question becomes x and y
are siblings. Now, what is your take? अब आपका वही आंसर नहीं होगा ना जो पहले था. X is sister to Y because gender is not mentioned. Varesh, X is sister to Y. How can you say X is sister to Y? How can you know the gender of X? X is just a variable. No conclusion, exactly. तो आप क्या बोलेंगे? For this particular question, आप बोलोगे कि sibling बोलोगे ना? X and Y are sibling. In that case, आप बोलोगे X related to Y as either sister or brother. यही तो दो बातें हो सकती हैं, या तो sister या फिर brother, right? तो सिंपल सा जो द वेरी फर्स्ट फंडा ऑफ ब्लड रिलेशनशिप, अगर मैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट की ही बात करूं अगर आप लोगों के साथ, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ब्लड रिलेशनशिप का, वो ये है कि अगर किसी पर्सन का जेंडर नहीं दे रखा है, ठीक है, तो जस्ट बिकॉज द नेम साउंड्स लाइक अ गर्ल्स नेम, हो सकता है अनन्या आपकी अपनी बहन का नाम हो सकता है अनन्या आपके पड़ोस में कोई रह रही लड़की है, राइट, बट आप किसी को भी इस तरह से जज नहीं करेंगे कि दिस पर्सन इज अ मेल और अ फीमेल जस्ट बिकॉज द नेम साउंड्स लाइक अ गर्ल्स नेम और द नेम साउंड्स लाइक अ बॉय नेम और अ मेल नेम. ठीक है, अगर कहीं पे कंफ्यूजन होता है तो आप सिंपल एक्स एंड वाई के साथ रिलेट कर सकते हो, दैट विल मेक श्योर कि आप ठीक कर रहे हैं. और इसको आप, हमारा जो इंडिया है, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, और आप इसके एग्जांपल से देख सकते हो. लेट्स सपोज पंजाबी पीपल, जब तक जसरीत के आगे कौर या सिंह नहीं लगता है, आपको कैसे पता चलता है कि जसरीत इज अ बॉय और जसरीत इज अ गर्ल? गेटिंग दिस थिंग? समझ में आ रही है आपको ये बात? तो किसी भी इंसान का, भले ही वो नाम सीता गीता मीता हो, लेकिन अगर सीता गीता मीता के लिए शी यूज नहीं हुआ है, सीता गीता मीता के लिए मदर या सिस्टर या नीस यूज नहीं हुआ है, तो दो ही तरीके से आप किसी इंसान का जेंडर गेस कर सकते हैं. या तो उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए कोई रिलेशनशिप टर्म यूज हुआ हो, लाइक फादर मदर सिस्टर, तब आप पता कर सकते हो कि फादर है तो मतलब मेल होगा, ब्रदर है तो मतलब भाई होगा, सिस्टर है तो फीमेल होगी. ठीक है, तो अनटिल अनलेस, या फिर उनके लिए क्या यूज हुआ हो, ही और शी यूज हुआ हो. ही और शी यूज होगा तब तो आपको पता चली जाएगा प्रोनाउंस यूज हुए हैं. ही विल बी फॉर अ मेल पर्सन एंड शी विल बी फॉर अ फीमेल पर्सन. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ. चलिए, अब एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपके सामने, आप सबको दिख भी रहा होगा. ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, वेरी बेसिक ऑफ द क्वेश्चन. इसको जरा आप सॉल्व करें एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन. इसके लिए टाइम लिमिट है गाइस, और टाइम लिमिट है आपके पास एग्जैक्टली क्योंकि ये पहला ही क्वेश्चन है और ये इजी भी है, तो लेट्स कीप 2 मिनट्स टाइम.
जेंडर ऑफ डी इज नॉट क्लियर, दैट्स फाइन, कोई बात नहीं है. ऋषिकेश ने आंसर किया है अंकल. ओके, हाउ इज डी रिलेटेड टू बाय अंकल. निकिता का भी आंसर आ गया अंकल. ऋषिकेश बोल रहे हैं जेंडर ऑफ डी इज नॉट क्लियर. ओके फाइन, बट यू समहाउ आंसर्ड मी अंकल, तो वो क्या था? आई डिडंट गेट द डायग्राम. आशीष, यू नीड टू ट्राई. ऋषिकेश से और मे बी आंट. ओके, तो यू आर ट्राइंग टू से ऋषिकेश की अंकल भी हो सकते हैं, आंट भी हो सकते हैं. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है. अभी डिस्कस करेंगे तो देखते हैं ना. चलिए, तो आई गेस लेट्स डिस्कस नाउ. देखो कैसे स्टार्ट करना है. हमने साइन लैंग्वेज सीखी थी, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ. साइन लैंग्वेज, प्लस का मतलब था मेल, ठीक है, माइनस का मतलब था फीमेल, एंड दिस साइन वाज फॉर सिबलिंग्स, एंड दिस साइन वाज फॉर अ मैरिड कपल. ठीक है, तो ये तो होगी अपनी साइन लैंग्वेज. अब इसके आगे समझते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, फटाफट से देखते हैं. द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट सेज के इज द ब्रदर ऑफ जे. तो सिंपल बनाओ आप के को. के इज ब्रदर. के के लिए क्या टर्म यूज हुआ? ब्रदर, यानी कि के शुड बी अ मेल पर्सन. के इज द ब्रदर ऑफ जे. और जो हमने साइन लगाया वो कौन सा साइन लगाया? सिबलिंग्स साइन लगाया. ठीक है, जे इज द मदर ऑफ वाई. जे के लिए क्या टर्म यूज हुई? मदर. तो जे इज व्हाट? अ फीमेल. जे किसकी मदर बताया जा रहा है? वाई की, क्योंकि जे मदर है वाई की और वाई उसका चाइल्ड है. डॉटर भी हो सकती है, सन भी हो सकता है. तो वाई जो चाइल्ड है वो कहाँ आएगा? वो उससे नीचे वाली जनरेशन में आएगा ना. तो जब आप डायग्राम बना रहे हो तो आपको ये भी देखना है कि सेम जनरेशन का पर्सन है, इससे डाउन जनरेशन पे आना है, इससे अप जनरेशन पे आना है. तो दिस ऑल हैज टू गो हैंड इन हैंड. सो जे इज द मदर ऑफ वाई. अगर जे मदर है तो जे विल बी इन द फर्स्ट जनरेशन. वाई चाइल्ड है, इट विल बी इन द सेकेंड जनरेशन. ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? y इज सिस्टर ऑफ t, एंड दिस y इज सिस्टर यानी कि फीमेल. सिस्टर ऑफ whom? सिस्टर ऑफ t. अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, आपके लिए इजी हो जाएगा आगे भी. जब आपने बोला कि y इज सिस्टर ऑफ t, तो y तो सिस्टर है t की, यानी कि y का जेंडर तो पता चल रहा है. लेकिन t कैन बी द सन, t कैन बी द ब्रदर, और t कैन बी द सिस्टर ऑल्सो. वाई सिस्टर है टी की, तो टी उसका भाई भी हो सकता है, टी उसकी बहन भी हो सकती है. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. नेक्स्ट स्टेटमेंट यू फाइंड इज टी इज मैरिड टू क्यू. टी की मैरिज हुई है क्यू के साथ, तो टी इज मैरिड टू क्यू. आई हैव पुट दिस मैरिड कपल साइन हियर. टी इज मैरिड टू क्यू, बट still we are not sure of the gender of t. T is a wife or t is a husband, that is not clear as of now. Moving further, s is the father of j. जो s है वो father है j का. ठीक है, s is the father male, s is the father of j. अगर s father j का है तो s father k का भी होना चाहिए. as simple as that. Now the next statement is a very very important one. और आप सबने अगर किसी चीज पे नहीं ध्यान दिया है, if I understand from the answers you have given me, थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको. एंड दिस इज a very very important point also. It says that S has only one daughter. क्या बोला इसने? S has only one daughter. अभी आपको S के दो चिल्ड्रन दिख रहे हैं ना, एक तो K दिख रहा है और एक J दिख रही है. J उसकी डॉटर है, ये हमें ऑलरेडी पता चला. कैसे पता चला? क्योंकि J के लिए जो टर्म यूज हुई थी वो मदर यूज हुई थी, यानी कि J फीमेल है, ये हमें पता था. और J जो है वो चाइल्ड है किसका? S का, ये हमें पता है. और ये फीमेल है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि S की जो है वो J क्या है? डॉटर है. तो J इज द डॉटर टू S. क्लियर हुई बात? अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला S हैज ओनली वन डॉटर. S की सिर्फ और सिर्फ एक ही डॉटर है. और S की जो सिर्फ एक ही डॉटर है, वो डॉटर आपको दिख रही है ना सामने. व्हाट्स द नेम ऑफ दैट डॉटर? J. क्लियर? इसका मतलब ये भी है कि अगर S के और चिल्ड्रन होंगे, अभी तो K तो आपको पता है कि K उसका सन है, J उसकी एकमात्र डॉटर है, द ओनली डॉटर S हैज. अगर S के और चिल्ड्रन निकल कर आते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होने चाहिए? उसके सन होने चाहिए. ठीक है, अब ये जरा आगे पढ़ते हैं हम. S is married to R and S is married to R. Since S is a male person must be married to a woman, तो R क्या होगी? उसकी वाइफ हो जाएगी. नेक्स्ट स्टेटमेंट,
K is the brother of D. अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही थी from this statement only daughter से. What they say K is the brother of D. K is the brother. K brother हो गया किसका? D का. अब K तो brother हो गया D का. D उसका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, जैसे कि आप लोग सब लोगों ने मैसेज में लिखा भी कि D का जेंडर क्लियर नहीं है. आर यू श्योर दैट D का जेंडर क्लियर नहीं है? S has only one daughter and that daughter is in front of you, that is J. That means बाकी जो किड्स हैं S के बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाते हैं? सन हो जाते हैं कि नहीं? यानी कि D का जेंडर इनडायरेक्ट वेज में हम खुद पता कर सकते हैं कि D will be a male child और D will be the son of S and R. You get that this thing? U is the father-in-law of D and U कौन है? U father-in-law है किसका? D का. तो U is the father-in-law of D. D का father-in-law कौन होगा? क्योंकि D खुद क्या है? एक मेल पर्सन. D की मैरिज जिससे हुई होगी, अ फीमेल, D की जिससे मैरिज हुई होगी उसका जो फादर होगा वो D का क्या होगा? फादर-इन-लॉ होगा. Now what they say how is D related to Y? The question is how is D related to Y? Now pay attention. D का रिलेशनशिप Y के साथ डायरेक्ट नहीं है. D का रिलेशनशिप Y के साथ है. क्यों? क्योंकि D की सिस्टर है J और J की कौन है? डॉटर है. तो आपके भाई बहन के बच्चे आपके क्या होते हैं? या मैं बोलूं आपके सिबलिंग्स के बच्चे आपके क्या होते हैं? नीस और नेफ्यू. आप उन बच्चों के क्या बनते हो? अंकल या आंट. सो यहाँ पे D का रिलेशनशिप Y के साथ क्या होगा? D के लिए Y कौन है? उसकी सिस्टर की चाइल्ड. तो D उसका क्या हो जाएगा? मामा. बिकॉज नाउ दैट वी अंडरस्टैंड द जेंडर. और D उसका मामा है यानी कि क्या हो जाएगा? मैटरनल अंकल. तो हाउ इज D रिलेटेड टू Y? मैटरनल अंकल. सिंस मैटरनल अंकल इज नॉट देयर एंड वी ओनली हैव अंकल, तो यस यू कैन गो विद अंकल वेरी इजीली. अगर यहाँ पे मैटरनल अंकल होता तब आप जरूर मैटरनल अंकल बोलते. ठीक है? क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? क्लियर? अब आप लोग क्या करोगे? आप लोग इस चीज का ध्यान रखोगे वेन एवर. हाँ निकिता बोलो. Might be writing it. I just wanted to say that. Okay. Thank you निकिता. चलो क्लियर हो गया आपको? दैट्स ग्रेट. तो अब हम सिंपल से अपने दिमाग में हमेशा के लिए ये बात रख सकते हैं कि अगर ओनली वर्ड यूज हो रहा है तो यू विल ऑलवेज हैव अ डेफिनेट आंसर. अगर ओनली वर्ड यूज नहीं हो रहा है देन यू विल हैव टू सी, यू विल हैव टू लुक आउट फॉर मोर पॉसिबल वेज. लेकिन ओनली है तो आप ध्यान रखोगे कि ओनली वर्ड ने क्या कर दिया? सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है. ब्लड रिलेशन इज नथिंग बट इफ यू कैन पे अटेंशन टू ऑल द पॉसिबल केसेस. ठीक है? फिलहाल इतना ही समझ, इतना हमें क्लियर हुआ ना? हाउ इज डी रिलेटेड टू वाई? एज अंकल और वी कैन प्रिसाइजली से मैटरनल अंकल. फिलहाल मैटरनल नहीं है तो यू कैन गो विद अंकल ओनली. चलिए, सो दैट वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. अब एक इजी सा क्वेश्चन ले लें. एक क्वेश्चन आपके सामने ये है. लेट्स सी हु कैन आंसर दिस वन इन द फर्स्ट प्लेस. कीजिए. क्विक क्विक क्विक, जल्दी देखो कि किसका आंसर सबसे पहले आता है. अभी तो किसी का नहीं आया.
D is related to X, but there is no X in the question now. So, निकिता, ये तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे शुरू हुआ है आपका. इफ के साथ कोई क्वेश्चन शुरू है मतलब क्या कंडीशनल क्वेश्चन है. आपको एक कंडीशन दे दी गई है कि अगर मतलब क्या, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट की गई है ना निकिता. व्हाट इज सेइंग कि अगर डी की मैरिज एक्स से हो जाए तो फिर एक्स का रिलेशनशिप क्या होगा एम के साथ, लाइक दैट. ठीक है, read the question properly. You all have the potential to answer in the same manner, in the same pace. It just sometimes we don't read the question properly. Okay. ऋषिकेश ने आंसर किया सन इन लॉ, वरेश ने आंसर किया है डॉटर इन लॉ. ऋषिकेश बोल रहे हैं डॉटर्स हस्बैंड. हाँ, तो बेटी का अगर हस्बैंड है तो क्या हुआ, दामाद हुआ. हिंदी में क्या बोलते, दामाद बोलते हैं ना. दामाद को क्या बोलेंगे इंग्लिश में ऋषिकेश? सन इन लॉ. वरेश, अच्छा वरेश आपने पहले आई गेस डॉटर इन लॉ बोला था ना. कोई बात नहीं, दैट्स ओके. सन इन लॉ करेक्ट. ठीक है वरेश, ठीक बोल रहे हो. ऋषिकेश बोल रहा है सन इन लॉ. ठीक है, ग्रेट. निकिता, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. चलिए डिस्कस करते फिर. डॉटर इन लॉ, ओके ग्रेट. चलिए, अच्छा अभी आप लोग जरा चैट में कुछ मत लिखना, इट्स नॉट विजिबल टू मी राइट नाउ. लेट्स डिस्कस दिस. और आई एम श्योर आप सबने आंसर ठीक किया है. एस इज द मदर ऑफ डी. फटाफट से करते हैं. एस इज द मदर, यानी कि फीमेल पता चल रहा है. एस मदर है किसकी, डी की. के इज द ब्रदर ऑफ डी. के ब्रदर है डी का. डी उसकी सिस्टर भी हो सकती है और ब्रदर भी हो सकता है. अगर एस मदर डी की है तो एस मदर के की भी होंगी. के इज द ओनली सन ऑफ एम. के हैज बीन कॉल्ड एज द ओनली सन ऑफ एम. के को बताया गया क्या, एम का एकमात्र बेटा है ये, राइट. तो ओनली सन है. और सन आपको कौन बोल सकता है, सन आपको या तो आपके पापा बोलेंगे या फिर आपकी मम्मी बोलेंगे. आपके अंकल आपको सन नहीं बोल सकते. हिंदी में जरूर बेटा बेटा करते रहते हैं, लेकिन इंग्लिश में सन एंड डॉटर, दीज आर वेरी रिस्ट्रिक्टेड टर्म्स, राइट. देयर आर सर्टेन टर्म्स कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव. What are these exclusive terms? Where you know what we are trying to say, what we are trying to convey. Like, for example, if you call someone your sister, you are very sure that her parents are the same as yours. आपके और उसके मम्मी पापा सेम हैं, तभी आप उसको सिस्टर बोल रहे हो. अदरवाइज आप उसको कजिन बोल सकते हो. ठीक है. If you are calling someone as your father, it is again a very exclusive term. You cannot call anyone like your father. So father, mother, sister, brother, right, वाइफ, हस्बैंड, दीज आर द एक्सक्लूसिव टर्म. ये जो अंकल, आंट, कजिन्स, ये सब नॉन एक्सक्लूसिव टर्म्स है. क्योंकि अंकल आप किसी एक इंसान के लिए थोड़ा ना बोलते हो. अंकल आप चाचा के लिए भी बोलोगे, ताऊ के लिए भी बोलोगे, मामा के लिए भी बोलोगे, फूफा के लिए भी बोलोगे. तो अंकल इज अ नॉन एक्सक्लूसिव टर्म, राइट. चलिए खैर, ये तो एक बात हुई. हम कहाँ पे थे? सो के इज द ओनली सन ऑफ एम. हाँ, हम यहाँ पे थे, यहाँ से हम इस बात पे गए थे. तो के अगर सन है एम का, तो के सन या तो अपनी मम्मी का हो सकता है या अपने फादर का हो सकता है. मम्मी कौन है, एस. पापा कौन होंगे, एम. तो फ्रॉम हियर वी कैन एम हैज टू बी अ मैरिड कपल. नाउ एम इज द सन ऑफ यू. और एम किसका सन है, एम इज द सन ऑफ यू, राइट. यू इज द हस्बैंड ऑफ टी. यू को हस्बैंड बताया गया किसका, टी का. अगर यू हस्बैंड है टी का तो टी उसकी क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी. एंड लास्ट इज टी इज द मदर ऑफ वाई. टी इज द मदर ऑफ वाई, राइट. तो टी अगर मदर है वाई की तो वाई यहाँ पे आ जाएगी. वाई कौन हो सकता है, Y can be the sibling to M, या तो भाई या बहन. ठीक है, either male or female, it could be anything. Now what we have in the question. अब एक और चीज, यहाँ पे फिर से एक वर्ड यूज हुआ था कि K is the only son of M. अगर K only son है M का, यानी कि S और M का अगर बेटा एक है तो बाकी अगर S और M के चिल्ड्रन है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएंगे, फीमेल हो जाएंगे, डॉटर हो जाएंगी. तो D का जेंडर वी आर वेरी श्योर कि D इज अ फीमेल. Now the question says if D is married to X. अगर D की मैरिज करा दो आप किसके साथ, X के साथ करा दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है. If D is married to X, अब D क्या है, फीमेल. X क्या होगा, उसका हस्बैंड यानी कि मेल. यहां से ही समझ में आता है. Then how is X related to M? तो X का रिलेशनशिप M के साथ क्या होगा, M की डॉटर जो है उसका क्या है, ये हस्बैंड, यानी कि M का क्या है, दामाद. दामाद मतलब सन इन लॉ. So how is X related to M? सन इन लॉ. और मैक्सिमम पीपल हैव आंसर्ड इट राइट. सबने अपना आंसर ठीक दिया है. वेल डन गाइस, वेरी गुड. चलिए
Now, shall we take one more question? Harsh, can we go further, or we need to, if you're there, Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm listening. can we go further? Ma'am, we can go further by just 10 minutes. 10 minutes, okay. Yeah. तो एक काम करते हैं, I can give them these questions later on, maybe in the slide or some way. Yeah, you can एक share it with me and I will share it on the Telegram group. ठीक है, sure. So guys, So we just completed one category of question, that is the paragraph sort of. आपको questions जो है वो Telegram group में मिल जाएंगे. But yes, ma'am. let's move on to the next category, that is the single statement or chain question. तो एक दो question हम discuss कर लेते, so that when you have questions as in for your practice, you are able to solve them in the shortest way possible, right? तो एक question आपके सामने है, and you all can try to solve this one. Yeah. Start with this. Let's take 1 minute's time. Varesh ने आंसर किया फादर और अंकल. आशीष आंसर्स द सेम, दैट इज फादर और अंकल. ग्रेट. बजीला बोल रहे हैं अंकल. ओके, इट कैन बी बजीला आल्सो, आई डोंट नो. नवदीशा बोल रहे हैं फादर और अंकल. दैट्स ग्रेट. Quick, Nikita, can you answer for this one? चलिए, वेल डन गाइस. सब लोगों ने आंसर किया है फादर और अंकल, एंड आई एम वेरी श्योर कि फादर और अंकल बिल्कुल सही है हमारा आंसर. फटाफट से इसको डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा, इन क्वेश्चंस को हम बोलते हैं तो सिंगल स्टेटमेंट. सिंगल स्टेटमेंट बोलने का सिंपल सा रीजन है दैट यू हैव ईदर वन और टू स्टेटमेंट्स एट अ टाइम. देन व्हाई वी कॉल इट चेन क्वेश्चन. दोनों नाम से बोल सकते हो आप इनको. चेन क्वेश्चन बोलने का मतलब बिकॉज वन आफ्टर द अदर देयर इज अ लिंक अप ऑफ अनदर रिलेशनशिप. yesterday I defeated the only brother, यहाँ पे बात खत्म नहीं. brother of the daughter, यहाँ पे बात खत्म नहीं. daughter of my grandmother. तो ये जो ऑफ है, इसमें बहुत सारे आपको ऑफ दिखाई देते हैं. that is the link up of one relationship to the other, and that is why we call it as chain relationship, because it's a link up of many relationship with each other. ठीक है, एक बात. now फटाफट से इसको देखते हैं कि how do we solve these questions in the shortest way possible. आप क्या करोगे, आपने सबसे लास्ट से स्टार्ट करोगे. सबसे लास्ट में यू नीड टू सी कि फ्रॉम विच एंगल यू नीड टू पिक. माई ग्रैंडमदर से पिक कर सकते हो बिल्कुल. अब माई, ये कौन, ये माई किसको रिलेट करेगा, स्पीकर को रिलेट करेगा ना. इफ आई मेक अ स्टेटमेंट लाइक माई मदर्स फादर,
तो माई किसको रिलेट कर रहा है? मुझे, जो स्पीकर है, जो ये बात कह रहा है. तो माई या माइन ऑलवेज विल बी रिलेटिंग टू स्पीकर इटसेल्फ. तो माई ग्रैंड मदर यानी कि स्पीकर की ग्रैंड मदर. अब ग्रैंड मदर के दो मतलब हो सकते हैं. ग्रैंड मदर कैन बी दादी. There are two meaning to the grandmother. It can be दादी और it can be नानी, right? Both. ठीक है. तो my grandmother मतलब मैं दादी की भी बात कर सकती हूँ और नानी की भी बात कर सकती हूँ. अब थोड़ा सा पहले चलते हैं. So my grandmother either दादी और नानी, two cases we have picked. Daughter of my दादी, अगर मेरी दादी की डॉटर होगी तो मेरी क्या हो सकती है? आंट. दादी की डॉटर होगी तो क्या होगी? आंट होगी. आंट होगी मतलब क्या होगी? बुआ होगी. अगर नानी की डॉटर होगी तो कौन हो सकती है? नानी की डॉटर कौन हो सकती है? मम्मी हो सकती है ना. मम्मी भी तो नानी की डॉटर है. मदर. और नानी की डॉटर, क्योंकि नानी की इकलौती डॉटर की बात नहीं हुई है, तो नानी की दो डॉटर भी हो सकती है, चार भी हो सकती है. अगर नानी की एक डॉटर, it could be Nani's daughter can be your mother also. Nani's daughter can be your aunt also. Which aunt we are talking about here? Masi, right? So daughter of my grandmother can be my बुआ, can be my mother, can be my मासी. अगर हम इन सारी चीजों को एक साथ लेके चले, ठीक है. This is one case. Aunt वाला case is one and mother aunt वाला case is another case. Moving further, only brother of whom? Only brother of either aunt और mother और मासी. तो अगर मेरी बुआ यानी कि आंट का अगर ओनली ब्रदर होगा तो वो कौन होंगे? मेरे फादर होंगे कि नहीं? राइट. अगर ओनली ब्रदर मेरी माँ का ओनली ब्रदर होगा तो वो कौन होगा? मामा. राइट. आंट यानी कि मासी का ओनली ब्रदर होगा तो वो भी मामा होगा. तो इस ये जो नानी वाले केस में आप चाहे मदर ले चाहे आप मासी ले, दोनों से एक ही आंसर हमारा निकल के आएगा, मामा यानी कि मैटरनल अंकल. So the question becomes, yesterday I defeated the only brother of the daughter of my grandmother. तो yesterday I defeated the, हमने लास्ट से पिक किया my grandmother से. My grandmother can be my दादी, my नानी, right? Daughter of my grandmother, तो मेरी दादी की डॉटर होगी तो वो क्या हो जाएगी? आंट यानी कि बुआ. नानी की डॉटर हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? It can be your mother, it can also be your aunt. Then ओनली ब्रदर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, ओनली ब्रदर ऑफ, अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट में देखें तो इसको हम वापस से कैसे रीड कर सकते हैं? बिकॉज नाउ दैट वी हैव डिड्यूस्ड दिस थिंग, द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडमदर कैन बी माय आंट, कैन बी माय मदर, कैन बी माय मैटरनल आंट, दैट इज मासी, right? So I will write it in Hindi so that we have a clarity between aunt and masi here. This is for bua, this is for masi, right? So only brother of either of them, only brother of your bua will be your father. I'm writing it here. Only brother of your mother will be your mama, yani ki maternal uncle. And if we go in the third case, that is masi, only brother of your masi will again be the mama only, that is maternal uncle only. So whom did you defeat that day? So yesterday I defeated either my father or my uncle. So the answer will be father or uncle, and to be more precise, this option could have been changed to father or maternal uncle, but uncle is also fine. Father or maternal uncle. Great. So that will be it. Now, does anyone has any doubt here? Hi, Harsh. Yeah. No, ma'am. You're asking for the doubt, and let's wait. We need to end the session, right? Yes. Okay. अच्छा, किसी का कोई डाउट है क्या? Please guys tell me. कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो फटाफट से. She is saying no, ma'am. Varesh is saying, ma'am, clear. Rishikesh is, if it's only brother, then Masi won't be possible, right? So Shri Smita Why says, not? Why not? If it is only brother, we are talking about only brother. इकलौता भाई. तो दो बहनों का भी तो एक भाई होगा, तो वो इकलौता भाई तो होगा. What's the problem in that? Okay. Now on this note, yeah. Sure. Go ahead. Yeah. So on that note, how will you rate today's session? Can we have that on the chat box? How will you rate this session out of 10? Varesh says 100. Thank you, Varesh. Sushri says 100. 10 on 10. 1000. Navdisha says 1000. It means there's a great clarity with respect to this particular topic. Thank you so much, ma'am, for taking out time and taking this wonderful session on blood relation, a very, very important topic for law entrance examination. Hope to have you back again next week with another wonderful session. Thank you, Harsh. Thank you so much, and thank you guys for being so interactive. That's the great thing from a student I can expect.
And good luck, take care, and we'll be sending you questions based on this exercise what we have learned, so that you can see how much you have got the topic right. Okay. On that note, bye everyone. Take care.